Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history topic peasants, zamindars and state. In the previous class, we have discussed some important questions regarding this topic. We continue this process. Today we are going to discuss more important questions regarding the topic peasants, zamindars and state. The first question today we will select is describe Anan Akbari. Describe Anan Akbari. ये Anan Akbari क्या थी? So far as it is answer is concerned, it was vision of Akbar's empire. In this book, Anan Akbari, vision of Akbar's empire. इसमें अकबर के जो empire है उसका vision बयान किया गया है. Strong ruling class, कौन सा class जो strong था as a ruler वो इसमें बयान किया गया है. The organization of the court, administrative and the army. अकबर का जो दरबार था, कोर्ट था, उसकी जो आर्मी थी, it is all described in Anan Akbari. Include detailed revenue records. Revenue records is also include in Anan Akbari with details with the help of total try to the reorganize of the whole system. How was administrative policies made? What was the revenue system? What was the who collected the revenue? What was the rate of revenue? These all things are discussed, are compiled. Let me say these all things are compiled in this book, Anan Akbari. Who wrote this book? In the previous class we have discussed it. We have discussed this question. Who wrote this book? Abul Fazl. Useful descriptions of agrarian society in the agriculture. Agrarian society was fully in detail discussed in Anan Akbari. After that is another question. What was the role played by women in agrarian society? What was the role of women played in agrarian society? From the point of examination view, it is very important question. It was often asked by the examiners. What was the role played by the woman in agrarian society में, in agriculture में, agrarian society में औरत क्या क्या रोल था? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में. तो क्या रोल था? Women worked shoulder to shoulder with men in fields. औरत जो थी वो मर्दों के शाना बशाना फील्ड्स में काम करती थी. दूसरा पॉइंट, women sowed, weeded, threshed and winnowed the harvest. जो भी फसल होता था, जो भी व्हील, जो भी फसल हम हासिल करते थे, तो उसमें औरत मर्दों का हाथ बटाती थी. इन्हें सोड उसको उठाने में, वीडेड उसकी जो अनवांटेड प्लांट्स जो वीड होते उसको निकालने में, या थ्रेशिंग उसको साफ करने में, या हार्वेस्ट करने में, उसको काटने में, ये मर्दों के शाना बशाने, मर्दों का हाथ बटाते थे. मर्दों उसके शाना बशाने में फील्ड में खेत में काम करते. क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वमन उसमें भी काम करती थी, सच एज स्पाइनिंग यानी काटना, यार्न शिफ्टिंग एंड नीटिंग, क्ले पोट्री को मिट्टी को ओंधना, उसमें एंड एम्बरिंग और उसमें क्या वो नक्शकारी करना, ये उसमें भी काम करती थी औरत. क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी, फील्ड प्रोडक्शन में भी. Some restrictions during some days of month women were not. साउथ वेस्टर्न इंडिया में कुछ रिवाज था, कुछ दिन, सम डेज, मंथ में कुछ दिन, महीने में कुछ दिन वो बुरा मानते थे. वेस्टर्न इंडिया की बात हम करते हैं कि वमन को महीने में कुछ दिन ऐसे थे जिन दिनों औरत को ये अलाउड नहीं था टच टू द पला, वो हल के साथ हाथ लगाए
आर द व्हील ऑफ पोट्री, जो व्हील होता है जिस पर बर्तन बनाते हैं, उसके साथ उसको इजाजत नहीं थी हाथ लगाने के लिए। वेस्टर्न इंडिया में महीने में कुछ ऐसे दिन जिनको मनहूस समझते थे, तो औरत को पुलाह और पोट्री व्हील के साथ हाथ लगाने नहीं देते थे, वो कुछ मखसूस दिन थे। प्रोडक्शन, और इसके बाद और क्या काम करती, प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे को जन्म देना और उनकी देखभाल करना, ये भी औरत करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यानी रोल प्लेड बाय वुमेन एग्रारियन सोसाइटी में क्या रोल था औरत का। तो ये आपने, इसके बाद और एक क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ लिया वो है हाउ वाज रेवेन्यू फिक्स्ड, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये कैसे फिक्स किया जाता था, किस तरीके से। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, इसके 2 स्टेज थे। एक स्टेज को कहते थे जमा, दूसरे को कहते थे हासिल। जमा और हासिल। जमा वाज द अमाउंट असर्ट, जो अमाउंट इनके पास होता था, जो जमा उस अमाउंट को कहते हैं अमाउंट वाज असर्ट, जो अमाउंट इनके पास था। तो हासिल वाज अमाउंट कलेक्टेड, जो जमा करते थे। एक जो हो उनके पास आता था, उनके फसलों को आता था, एक जो वो दूसरों से हासिल करते थे। यानी अमाउंट वाज कलेक्टेड, जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता था उसको हासिल कहते थे, जो इनके पास जमा था उसको एसर्ट कहते थे। यानी एसर्ट अमाउंट को जमा कहते थे और कलेक्ट अमाउंट को हासिल कहते थे, जमा और हासिल। बोथ कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड मेजर्ड ईच प्रोविंस, हर खिते में कल्टिवेटेड लैंड, जो जमीन कल्टिवेट की जाती थी, काश्त की जाती थी, एंड कल्टिवेबल, या जो काश्त के काबिल थी, चाहे उसको काश्त करते थे या नहीं करते थे, जो कल्टिवेबल के लायक जमीन थी या जो कल्टिवेट की जाती थी, इन दोनों को नापा जाता था, इनकी मेजरमेंट की जाती थी हर एक प्रोविंस में, और उसके बाद रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। यानी बोथ लैंड, दोनों जमीन जो कल्टिवेशन के काबिल थी और जो कल्टिवेट होती थी, दोनों को नाप के दोनों का मेजरमेंट किया जाता था ईच प्रोविंस में, हर खते में, हर इलाके में। उसके बाद रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। प्रिपेयर्ड एनुअल रिकॉर्ड्स फॉर नंबर ऑफ कल्टिवेटर्स इन ईच विलेज, और एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता था एनुअल, नंबर ऑफ कल्टिवेटर्स, कितने कल्टिवेटर हमारे पास हैं गांव में। एनुअल रिकॉर्ड, हर साल एनुअली ये रिकॉर्ड तैयार किया जाता था कि हर एक गांव में किस गांव में कितने कल्टिवेटर्स हैं, उनका एक रिकॉर्ड दर्ज किया जाता था। फिर उसके बाद रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू मेजर लैंड रेवेन्यू, ये जो लैंड रेवेन्यू है या ये जो लैंड मेजर है, इसको नापने के, जो मेजरमेंट करने के थे, इसके लिए ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल्स इसके लिए लगाए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, असाइन किए गए थे ऑफिसर्स, जो इस लैंड रेवेन्यू को मेजर करते थे, किसके पास कितनी जमीन है, कल्टिवेटर के काबिल है, कल्टिवेटेबल है या कल्टिवेटेड है, इसको नाप के इसका अंदाजा तखमीना लगा के वो रेवेन्यू फिक्स करते थे। कौन? ऑफिशियल्स। दीवान हु वाज रेस्पॉन्सिबल, जो दीवान होता था, ये एक टर्म है। दीवान वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिजिकल सिस्टम ऑफ द एम्पायर, जो भी पूरी फिजिकल सिस्टम एम्पायर में थी, इस बादशाह में थी, उसकी सारी जिम्मेवारी दीवान पर होती थी। दीवान इसका रेस्पॉन्सिबल होता था, वो इस पूरे सिस्टम पर ख्याल रखता था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया, रेवेन्यू अच्छी तरीके से कलेक्ट किया गया था, किस प्रोविंस से कितना रेवेन्यू आया, ये सारी की जो ये जिम्मेवारी थी वो दीवान पर थी। आई थिंक टुडे इट इज एनफ। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट जो टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह दूसरे क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी जो हमें लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टुडे इट इज एनफ। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।